Good morning to you all. Hope you all are fine. Now, today we are going to learn the new chapter, that is the joy of giving. इसका मतलब होता है the joy of giving का मतलब joy यानी खुशी होती है and giving means something we are giving to others. और वो जो joy होता है यानी किसी को अगर कुछ देते हैं हम लोग तो जो खुशी मिलती है that is the feelings, inner feelings होती है जो कि बहुत ही अच्छा फील कराता है हमें और हमें क्या करता है एक तरीके से बहुत ही सुकून और एहसास दिलाता है कि कितनी खुशी होती है जब किसी को हम लोग खुश देखते हैं या फिर क्या करते हैं किसी को कुछ देते हैं तो वो भी क्या करते हैं वो तो खुश होता ही है साथ ही साथ हम लोग भी खुश होते हैं. When you learn, teach, when you get, give. What does this means? When you learn means यानी जब आप कुछ लर्न करते हो कुछ अच्छा सीखते हो तो क्या करना चाहिए दूसरों को भी सिखाना चाहिए. जब आप कुछ मिलता है आपको यानी कहते हैं ना लोग एक हम लोग को हमेशा अपनी जो हाथ रहता है देने के लिए कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाने चाहिए. isn't it? हमेशा हमेशा हाथ कैसे हैंड कैसे होना चाहिए लाइक दिस यानी हमेशा देने के लिए और हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए. So when you learn, teach. When you get, give. So we are going to see the new chapter, the joy of giving. किस तरीके से ये जो joy है giving का happiness, inner happiness हमें provide करता है. We are going to learn in this chapter. Let us see. Dear children, you already know that all of us need to be compassionate towards each other. You know that being compassionate means to put ourselves in the place of others and sympathize with their feelings and experiences. यानी compassionate होना चाहिए दूसरे के प्रति. अब ये compassionate का मतलब होता क्या है ये उसका मतलब होता है in previous chapter also I have taught you the meaning of compassionate. The whole chapter was based on this and this is the feeling या फिर show करना sympathy किसी के अगेंस्ट में नॉट अगेंस्ट वी कैन से इट यानी किसी के प्रति सिंपैथी शो करना या फिर फीलिंग्स या एक्सपीरियंस को शेयर करना यानी अपनी जगह दूसरों की जगह अपने आप को रखना. दिस इज नॉट ऑल. वी शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम. हाउएवर इट इज अ फैक्ट दैट most of us are too busy with our own lives and do not have time for others. In other words, many among us do not have time to show our compassion towards others or being compassionate to others. यानी हमारा जो लाइफ है इतना बिजी हो चुका है कि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग दूसरों को थोड़ा सा वक्त दे सके उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके उनके प्रति कंपैशन शो कर सके. हमें इन सभी चीजों के लिए कोई भी समय नहीं है. The present world is full of competition. Everyone is trying to surpass others. Underline करोगे आप वर्ड को surpass को. We are always so busy thinking about ourselves, about how to better ourselves, how to excel in the field we have chosen as to move ahead in life, become successful and earn name, fame and money, that we have almost no time for others. We sometimes neglect even our family members. However, you know that this is wrong and should not happen. It is good to think or be concerned about ourselves, but not to the extent that we have no time, concern, sympathy or compassion for others. Always remember that God Himself is compassionate and wants all of us to be likewise. हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि दूसरों के लिए हमारे पास वक्त या समय नहीं है. हम जिस भी काम को चूज करते हैं उसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग किस तरीके से सक्सेस पा सके अपनी लाइफ में नाम कमा सकें फेम मिले हमें मनी मिले जिसकी वजह से हमारे पास जो वक्त है वो दूसरों को देने के लिए है ही नहीं. हम लोग कभी कभी क्या होता है अपने फैमिली मेंबर्स को भी अवॉइड करते. समटाइम्स इट सो हैपेंस विथ एवरीवन
that we don't have time for our family members. But this is wrong. ये नहीं होना चाहिए. और हमेशा ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग खुद के बारे में कंसर्न रहते हैं, सोचते हैं खुद के बारे में. लेकिन गॉड क्या चाहते हैं कि हम लोग भी गॉड की तरह ही कंपैशनेट रहें. ओके, नाउ the second factor is that when we are compassionate towards others or show our concern for them and help them, we feel good ourselves. We make others happy too. We earn their appreciation and respect. So, children, all of us should be sympathetic and compassionate towards others. We should help them in whatever way we can. This will give us immense joy. अब आप यहाँ पे अंडरलाइन करोगे, इमेंस को अंडरलाइन करोगे. नाउ व्हाट इज द सेकेंड फैक्टर? हम लोग जब भी क्या करते हैं, कंपैशनेट दूसरों के प्रति शो करते हैं या फिर हेल्प करते हैं, तो हम लोगों को खुद खुशी मिलती है. इसंट इट राइट? जब हम लोग किसी की हेल्प करते हैं, सामने वाले को तो खुशी होती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें भी खुशी महसूस होती है. इसलिए हमेशा हम लोगों को क्या कर रहना चाहिए, कंपैशनेट रहना चाहिए दूसरों के प्रति. और ये हम लोगों को एक इनर हैप्पीनेस देता है. और यहाँ पे इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, यानी ढेर सारी खुशियां जैसे मिल गई है उस टाइप से क्या होता है, फील होता है. चिल्ड्रेन, वी ऑल वांट और एक्सपेक्ट मेनी थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड द पीपल. हाउएवर, व्हाइल डूइंग सो वी शुड ऑल्सो आस्क आवरसेल्फ, व्हाट कैन आई गिव बैक टू द वर्ल्ड? What can I do for the people? We should always remember that no matter who we are, man, woman, child, young, old, rich or poor, we experience a special kind of joy known as the joy of giving when we give or help others. यानी हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से या फिर वर्ल्ड से कि वो हमारे लिए कुछ करे. लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, तो क्या हम वापस वो लोग को क्या दे सकते हैं, चाहे हम लोग कोई भी हो. तो इसलिए चाहे हम लोग रिच हो या फिर पुअर, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं स्पेशल काइंड ऑफ जॉय, दैट इज जॉय ऑफ गिविंग. Just think, your friend is in need of a pencil and you help him by lending your extra pencil. How would that make you feel? आपको वो कैसा फील होगा? Naturally, you will feel good yourself. Needless to say, your friend will also feel good and be happy. जब हम लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, हमें खुशी मिलती है, साथ ही साथ सामने वाले को भी क्या होती है, खुशी मिलती है. To experience the joy of giving, it is not necessary that we only share or give out things and donate money. और हाँ, आप लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे किसी को देना ही सिर्फ क्या कहलाता है, यानी वही हमें हैप्पीनेस देता है. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग जब पैसे देंगे या फिर कोई सामान देंगे या कोई चीज देंगे तभी क्या होता है, जॉय ऑफ गिविंग हम लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे. दिस इज नॉट ट्रू. Besides this, we can give our time, provide our skill to someone who needs it, or just say a kind word to someone who may not have expected it from us. Furthermore, to experience the joy of giving, we do not have to act heroically. यानी हम लोग सिर्फ देने से ही हमें खुशी नहीं मिलती है, बल्कि अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो या फिर आपके अंदर जो स्किल है, जो क्वालिटीज हैं, अगर वो आप किसी को आपकी उस क्वालिटी से या फिर आपका जो स्किल है उससे अगर किसी को हेल्प हो सके, या कोई एक काइंड वर्ड्स आप किसी को बोल रहे हो जो उस पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन दिस वे ऑल्सो वी कैन फील हैप्पी एंड वी कैन फील द एक्सपीरियंस ऑफ जॉय ऑफ गिविंग. इन अदर वर्ड्स, we need not travel to some distant land or search for the less fortunate people. All we need to do is to be aware of situations and those who are around us. यानी कहीं पे हम लोग को दूर जाके या फिर कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है कोई भाग्यशाली पर्सन को, बट
हम लोग को सिर्फ अवेयर रहना है जो हमारे आसपास हो रहे हैं उन्हीं चीजों से अवेयर होना है. Every relationship gives us an opportunity to give. We can give to our siblings, friends, relatives, colleagues, subordinates, boss, and so on. Sometimes we are not even aware of how much we can offer. For instance, although we may be tired of waiting in the queue at the railway reservation counter, we can be patient and understanding and offer the stressed out railway employee a warm smile. कभी कभी क्या होता है ना, आप बहुत लंबी लाइन में खड़े हो रेलवे स्टेशन पे और जब आपकी बारी आती है तो उसे आप अपना जो स्ट्रेस है उसे बाहर ना निकाल के उसे अगर एक छोटा सा स्माइल देते हो, दैट ऑल्सो मेक्स दैट पर्सन फील हैप्पी. दिस मीन्स that we have the power to raise a person's spirit and make his or her day. Similarly, at home or in the office, words of encouragement can build confidence in children or co-workers. यानी आप इस तरीके से करके, जिस तरीके से आपने अपना स्ट्रेस बाहर ना निकाल के उसे क्या किया, एक स्माइल से किया, ठीक है, देखा उसे, तो उसका क्या है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया आपने सामने वाले का. सो वी कैन डू विथ आवर relatives or co-workers, or we can do it with the children. And one more thing I want to tell you, that there is a difference between the colleagues and subordinate. Colleagues ऐसे person को कहते हैं with whom one works in a profession or business, but the subordinate is a person under the authority or control of another within an organization. ये subordinate क्या होते हैं, यानी किसी ऐसे पर्सन या अथॉरिटी के अंदर कंट्रोल में वर्क करते हैं या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं. लेकिन कलीग्स क्या होते हैं, जो पर्सन जिनके साथ हम कोई भी प्रोफेशन या फिर बिजनेस क्या कर रहे हो, साथ में काम कर रहे हो. We can also gift people our attention or interest. In other words, instead of being indifferent towards others, we can show or express our interest in them. This will help all those people who crave for our attention. Crave यहाँ पे आप underline करोगे, and the meaning of crave is feel a powerful desire for something. यानी कुछ लोग क्या चाहते हैं कि हमारा attention उन्हें मिले, so we can give this attention to others. Another gift which we can give others is the gift of recognition, यानी पहचान. Just think, children, why is praise so sought after? Because it is rare and hard to find. Almost all of us get frustrated when our efforts and achievements are not noticed or appreciated. Why does this? Why does this happen? यानी कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, अगर हम लोगों को उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जो हमने एफर्ट्स लगाए, तो हमें कैसा अच्छा फील नहीं होता है ना. सो वी शुड रिकॉग्नाइज, उन्हें क्या देना है, पहचान देना चाहिए. It is because all of us want recognition, isn't it? However, one important thing needs to be remembered here. Although praise is free and should be offered freely, it has its value only when it is genuine and sincere. अब आप ये भी सोच रहे हो कि किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं. It is not true. ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए. फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी किसी मोमेंट पे आप प्रेज करो. लेकिन जहां जेन्यून है, सिंसियर है, उन एफर्ट्स को हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक वैल्यू अलग होती है. फाइनली द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी ऑल कैन गिव अदर्स एंड ऑफ विच मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन अवेयर इज द गिफ्ट ऑफ टाइम. मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग समय नहीं दे पाते, यानी टाइम नहीं दे पाते. दैट वी कैन गिव. What better way to express our love and compassion than by giving our time to those whom we care about and those in need. जिन्हें जरूरत है उन्हें भी क्या करना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए. We always ought to remember that if we give our time to our friends, we draw them closer. वो हमारे करीब होते जाते हैं अगर हम उन्हें टाइम देते हैं. If we give our time to our enemies, we can change them into our friends.
आप क्या कर सकते हो, अगर कोई एनिमीज भी है, कोई क्या है, एनिमीज का मतलब क्या होता है, कोई दुश्मन भी होता है, अगर उससे भी हम टाइम देते हैं अपना, तो वो भी क्या बन जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं. And if we give our time to strangers, we receive their love, respect and appreciation in the same way. Children, it is noteworthy that in our country, the Joy of Giving Week is celebrated annually in September and October. You have to remember this. The Joy of Giving Week is celebrated annually, and which month it is? September and October. This event aims to create togetherness and celebrate the best within each one of us as human beings. People from diverse financial backgrounds take part in it, from millionaires organizing large fundraising events to a slum dweller sharing his idlis or chapatis with someone else. Now you might be wondering that what is the meaning of noteworthy? You have to underline this word noteworthy. Noteworthy means worth paying attention to or interesting or significant. यानी किसी चीज को हमें attention देना. Now what is the meaning of diverse? Diverse का मतलब होता है different great deal, जो varieties of persons होते हैं या फिर किसी भी चीज को हम लोग कहते हैं अलग अलग background से, that is known as diverse. And millionaires means a person whose assets are worth 1 million pounds or dollars or more than that. Okay, that are known as millionaires. Now what is the meaning of dweller? This also you have to underline. A person organizing, it can be, dweller is a person or animal that lives in or at a specified place. That they are known as the dwellers. The event brings together people from all walks of life who engage in giving their money and time, helping others with their skills or perform simple acts of kindness. People from colleges, corporates, science world, sports world and state governments take part in it. यानी ये सभी लोग क्या करते हैं, इसमें पार्ट लेते हैं, इसमें अपना योगदान देते हैं. Now we are going to see one story that is based on the virtue of the joy of giving. A very good story it is. You should always remember this for your lifelong also. Once there lived an old woman in a village. That old woman was living in a village. She was about 70 years old. She was frail and weak. Underline this frail. Frail means that she was very weak and delicate. Even her eyesight had become very weak. She had lost her only one son, Ramu, due to malaria. जो लेडी थी, जो वुमन थी, वो रामू उसका बेटा था. और वो किसकी वजह से उसे खो दी? क्योंकि ड्यू टू मलेरिया. he was infected by the malaria. The nearest hospital from her village was 10 kilometers away. जो हॉस्पिटल था वो कितनी दूर था? 10 kilometers. She could not take her seriously ill son to the hospital in time. वो अपने बेटे को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाई. The villagers had requested the doctor to come and treat Ramu in the village itself, but he had bluntly refused. Bluntly refused का मतलब है without trying to be polite. यानी वो person जो है आपसे bluntly बात कर रहा है, यानी उसे वो पोलाइट तरीके से और या फिर सामने वाले की जो फीलिंग्स है उसे उसका कदर नहीं होता है, और वो डायरेक्टली इस तरीके से ब्लंटली दैट पर्सन रिप्लाइज इन द सेम वे द डॉक्टर डिड. The villagers decided to carry Ramu on a makeshift bed to the hospital, but alas, it was too late. Ramu died on the way to the hospital. यानी जो वहां पे makeshift का मतलब होता है एक टेम्परेरी बेड उन्होंने प्रिपेयर किया रामू के लिए, विलेजर्स के लोग, और वो क्या किए, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन ऑन द वे रामू डाइड. The old woman was left with no one to look after her. अब कोई भी उस वुमन के साथ नहीं बचा था. So she decided to grow vegetables in her small plot of land and sell them in the market. वो छोटे से प्लॉट में वेजिटेबल्स ग्रो करने का डिसाइड किया उसने, और वो उसे क्या करती थी, मार्केट में बेचने का डिसाइड किया. She wanted to support herself with whatever money she earned by selling the vegetables.
Every morning she used to carry a basket of fresh vegetables on her head and proceed towards the market. यानी वो कैरी करती थी सारे वेजिटेबल्स को अपने हेड पे और क्या करके क्या उसने मार्केट चली गई और उसे क्यों गई वो बेचने के लिए मार्केट चली जाती थी बेचने के लिए. ऑन द वे शी हैड टू क्रॉस अ स्मॉल स्ट्रीम and even climb a small hill before reaching the market located on the other side of the hill. एक छोटा सा स्ट्रीम उसे क्रॉस करना पड़ता था. The stream it is like a small narrow river, small width in relation to length. यानी लेंथ में बहुत ही कम पड़ता है. That is known as the stream. And she has to cross the climb the small hill also. And she had to walk almost 3 kilometers daily. हर एक दिन 3 किलोमीटर्स उसे क्या करना पड़ता था चलना पड़ता था. वन मॉर्निंग एज यूजुअल शी वॉज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द मार्केट विथ हर वेजिटेबल्स. अ ट्रैवलर वॉज वॉकिंग बिहाइंड हर. व्हेन शी रीच्ड द स्ट्रीम शी फेल्ट थर्स्टी. जब वो स्ट्रीम के पास पहुंची तो उसे क्या लग गई प्यास लग गई. एंड शी केप्ट द बास्केट ऑन द ग्राउंड एंड फिल्ड हर पाम्स विथ वाटर टू ड्रिंक. अब ये पाम्स को फिल करना यानी हम लोग क्या करते हैं दोनों हाथों को इस तरीके से लेते हैं दिस इज और इस तरीके से उसने वाटर को क्या किया अपने हाथों में फिल किया पीने के लिए एज शी वॉज थर्स्टी. जैसे ही वो सडनली शी सॉ समथिंग शाइनिंग इन दी वाटर. जैसे ही वो अपने पाम से यानी दोनों हाथों से ऐसे करके वो क्या कर रही थी पानी पीने जा रही थी कि उसने क्या किया एक शाइनिंग चीज उसको पानी में दिखाई दिया. She picked it up. Initially, she thought it was a piece of stone. उसे क्या लगा कि वो क्या है स्टोन है. But then she thought, how can it be stone? वो सोची कि ये स्टोन कैसे हो सकता है. It is shining. It is a piece of gold. I am sure about it. वो शाइन कर रही थी चीजें तो उसे लगा कि ये स्टोन नहीं हो सकता है. It is a piece of gold. Even in this old age, with poor eyesight, I can recognize gold. I thank you, God, for helping me. I will sell this gold piece in the market and make a lot of money. While she was thinking so, the traveler came near her and inquired if she was okay. जब वो ये सोच के उसने थैंक किया गॉड को कि वो आज भी उसकी आंखें जो थी अच्छी नहीं थी पुअर आईसाइट होने के बावजूद वो क्या कर सकती थी गोल्ड को रिकॉग्नाइज कर सकती थी और उसने सोचा कि वो सेल करेगी इस गोल्ड को मार्केट में और वो बहुत सारा उसे उसके बदले मनी मिलेंगे. जैसे वो ये सारी कुछ सोच ही रही थी कि ट्रैवलर उसके पास आया और उससे पूछा कि इफ शी वाज ओके और नॉट. द वुमन शोड हिम द पीस ऑफ गोल्ड. वुमन क्या उससे दिखाया ट्रैवलर को पीस ऑफ गोल्ड. द ट्रैवलर रिकॉग्नाइज्ड हिम इमीडिएटली. ट्रैवलर क्या किया उससे दिख गया वो कि क्या चीज था वो. ही सेड ओल्ड लेडी डू यू नो दैट दिस इज अ पीस ऑफ गोल्ड. जो ट्रैवलर है वो लेडी से पूछ रहा है कि क्या तुम जानती हो कि ये क्या है ये पीस ऑफ गोल्ड है. व्हाट विल यू डू विद इट. उसने ये भी पूछा कि तुम इसका क्या करोगी. द वुमन रिप्लाइड यस आई नो इट इज ए गोल्ड. यस आई नो इट इज गोल्ड. I will sell it in the market. The traveler said, okay, do sell it. The money thus earned will help you spend the rest of your life comfortably. वो जो ट्रैवलर था उसने कहा कि हाँ आप इसे बेच दो आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे और आप क्या कर सकते हो अपना लाइवलीहुड अच्छे से बिता सकते हो. By the way, can you give me some of your carrots, tomatoes and radishes to eat? फिर ट्रैवलर ने कहा कि कैरेट्स टोमेटोज एंड रेडिसेस क्या उसे खाने को मिल सकता है. आई एम वेरी हंग्री. द वुमन ओब्लाइज्ड. वुमन ने कहा यस शी कैन गिव एज ही वॉज हंग्री. इन द आफ्टरनून व्हेन शी वॉज रिटर्निंग शी सॉ द मैन सिटिंग बिसाइड द स्ट्रीम. उसने देखा वो ट्रैवलर जो था वहीं पे बैठा हुआ था. शी वेंट नियर एंड आस्क्ड हिम व्हाट इज द मैटर व्हाट आर यू डूइंग हियर. वो लेडी जो है वो पूछती है उससे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो क्या मैटर है क्या बात है. The man replied, I am waiting for my friend. Did you sell the gold? The woman replied, I will sell it someday. I am not in a hurry. At this, the man said, you are so old, you will die. However, I am young now. I will live for many years. If you give me the gold, I can sell it
and utilize the money in establishing my business. अब मैन ने जब उस लेडी ने पूछा कि क्या मैटर है और अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तब उस ट्रैवलर ने रिप्लाई किया कि ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड एंड फिर वो क्या किया, उसने पूछा उस लेडी से कि क्या गोल्ड को सेल किया. उस लेडी ने रिप्लाई किया कि नहीं, उसे कोई जल्दी नहीं है सेल करने की. तभी उस ट्रैवलर ने बोला लेडी से दैट यू आर ओल्ड, यानी वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है और वो डाई कर जाएगी कुछ टाइम बाद. लेकिन जो ट्रैवलर है वो बहुत ही यंग है, वो बहुत सालों के लिए लिव करेगा. सो इफ यू गिव मी द गोल्ड आई कैन सेल इट. वो खुद मांग रहा है कि वो सेल करेगा और अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश करेगा उस मनी से. Without any hesitation, the woman handed over the gold to the traveler. The traveler was stunned as he was only testing her. He asked curiously, "What do you have within you which enabled you to part even with your gold?" Stunned रहने का मतलब यानी shocked. एक आदमी क्या होता है, अगर कुछ अचानक से देखता है तो कुछ बोल नहीं पाता है. वो क्या हो जाता है, एक अचानक से जैसे हम लोग देखने लगते हैं या फिर खड़े हो जाते हैं एक जगह पे. दैट इज इन द सेम वे दैट ट्रैवलर वाज स्टन्ड एंड वो क्या कर रहा था, सिर्फ उस लेडी को टेस्ट कर रहा था. लेकिन वो उस लेडी से पूछ रहा है कि तुम्हें मतलब क्या क्या हुआ है अंदर, आपके अंदर, जो ये गोल्ड को भी देने पे मजबूर कर दिया. The old woman replied with a smile. वो हंस के स्माइल से जवाब देती है, the joy of giving. The man set up his own business and flourished. He took the old lady to his mansion and treated her like his mother. उसने क्या किया, जो अपना बिजनेस है उसे सेटल किया और ये जो ओल्ड लेडी थी इसे अपने घर ले गया, ठीक है, अपने फ्लैट में, और इसको अपने मदर की तरह ट्रीट किया और एक मदर की तरह रखा. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट द जॉय ऑफ गिविंग, ये सिर्फ हमें ही खुशी नहीं मिलती बल्कि सामने वाले को भी खुशी दे जाती है. इसलिए हमेशा हाथ को कैसे आप लोगों को बढ़ाना है, देने के लिए, हमेशा लेने के लिए नहीं उठना चाहिए. इसलिए हमेशा अपने हैंड कैसे होने चाहिए, इन दिस वे. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to read this chapter thoroughly so that you can learn what the main virtue of the joy of giving. So that's all for today. Thank you.